شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سردار دست ناداب در دست یقین ہفتہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ عزائم اسلامیہ، آج ہماری چھٹی محفل ہے اور یہ چھٹی محفل اور چھٹی تاریخ سرکار غوث پاک سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ بہت ہی مبارک تاریخ ہے کہ ہم مبارک تاریخ میں چھٹی شریف میں ہم دستان کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی فیصلہ اور ہم سب کا سننا اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے محبوب آپ فرما دیں میں تم لوگوں سے کچھ اجر نہیں مانگتا، بس یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو، ہمارے قربت داروں سے، رشتہ داروں سے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا، فقیری کو پسند فرمایا۔ آپ بادشاہوں جیسی ٹھاٹ ماٹ والی زندگی میں نہیں رہتے تھے، آپ نے فقیر کو پسند فرمایا۔ اور جس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہ حجرہ صرف اتنا ہی بڑا تھا کہ جس میں حضور نماز پڑھ سکتے تھے، اور جب حضور نماز پڑھتے، جب حضور قیام میں ہوتے تو میں اپنے پیر کو پھیلا دیتی، جب حضور رکوع میں جاتے تو ہمارے پیر کو ہٹاتے، میں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے، جب پھر آپ سجدے سے اٹھاتے تو میں پیر کو پھیلا لیتی۔ یعنی اتنا چھوٹا کمرہ تھا، حضور نے اپنے تمام ازواج کے لیے اتنا ہی چھوٹا کمرہ بنایا تھا۔ اور نیچے کا جو فرش تھا، اس زمانے میں جو پتھر لگائے جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جو لگاتے تھے، بڑے بڑے امیر لوگ، حضور نے اپنے گھر میں پتھر بھی نہیں لگایا تھا بلکہ مٹی کا فرش تھا، اور جس پر آپ آرام فرماتے تھے ایک لکڑی کا کھاٹ تھا جس پر آپ سوتے تھے۔ حضور نے اپنی زندگی فقیری میں گزاری، اس لیے گزاری کہ ہماری امت جو غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، مفلس ہوں گے، تو اپنے مفلس کو، اپنی غریبی کو، اپنی غربت کو دیکھ کر وہ ترس نہ کھائیں گے، پریشان نہ ہوں گے۔ جب ہماری زندگی کو پڑھیں گے تو ان کو اپنی زندگی پر صبر کرنے کا سلیقہ مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے پاس بادشاہوں کے وفد آتے ہیں، دور دراز سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور حضور قیمت لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم حضور کی بارگاہ میں خدمت، اس تحفہ تحائف نذرانہ پیش کریں۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے بہت سارا قیمتی کپڑا اور کچھ سونے چاندی حضور کے پاس لے گئے۔ حضور نے جب یہ صحابہ کی عقیدت کو، آپ کی محبت کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے چاہنے والوں، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قیمتی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اسی وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ حضور نے فرمایا بس ہم یہی چاہتے ہیں جو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے تمہیں صاحب ایمان کیا، اس کے عوض میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت سے تم محبت کرو، ہمارے رشتہ داروں سے پیار کرو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب کو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا چاندی بن کر ہمارے پیچھے پیچھے ہوئی، ہمارے ساتھ ساتھ چلے، لیکن مجھے دولت پسند نہیں ہے۔ عزائم ملت اسلامیہ،
صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہم امام حسین کی محبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ اور رسول کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک مقام ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے اسے نیکی کرنے پر جو آمادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لیا ہے، اس لیے اپنے محبوب کے نواسے کی محفل سننے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی بہت قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اذان ملت اسلامیہ جو ہم لوگ امام حسین کی برگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، تبرک پیش کرتے ہیں، مٹھائی پیش کرتے ہیں، شیرنی شربت وغیرہ پیش کرتے ہیں، اذان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا کہ ہر انسان کو بیدار ہو جانے دو، ہر انسان کو بیدار ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ گرو نانک نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، ایک اپنے چیلا سے کہا کہ آج 10ویں محرم ہے، لے جاؤ اس تحفے تحائف، اس نظر و نیاز امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو۔ وہ سکھوں کو گرو ہے گرو نانک، ہمارے مذہب سے نہیں ہے، لیکن ان کو عقیدت تھی امام حسین سے، ان کو پیار تھا، محبت تھی۔ اس چیلے نے کہا، شاگرد نے کہا، گرو نانک امام حسین تو ہمارے دھرم گرو نہیں ہے، ہمارے مذہب کے نہیں ہے، پھر ان کے بارگاہ میں ہم کیوں خراج عقیدت پیش کریں؟ گرو نانک نے کہا اگر تم امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کرتے تو جاؤ اپنی بہن سے شادی کرو۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہی ہوا۔ گرو نانک نے کتنا پیارا جواب دیا۔ گرو نانک نے کہا اگر امام حسین مدینہ سے چل کر کربلا نہ آتے اور اپنی گردن کو کربلا کے میدان میں نہ کٹواتے، شہید نہ ہوتے، تو آج کسی بہن کی عزت نہ ہوتی، کسی ماں کی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کو، بہنوں کو، لوگوں کو عزت کا تحفظ دینے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ کربلا میں امام حسین نے بہنوں کی عزت کو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک سکھوں کا گرو ہو کر گرو نانک امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان صرف نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھو امام حسین کی محفل کو جتنے عقیدت کے ساتھ ہم سجائیں گے، جتنے محبت کے ساتھ اہتمام کریں گے، جتنا خلوص کے ساتھ ہم اہتمام کریں گے، سجائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمارے دل کو، ایمان کو منور کرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین، اب ذرا غور کریں، حضرت امام حسن، کل میں نے امام حسن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آپ کی کرامت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت۔ اب دیکھیں امام حسین بھی اپنے بڑے بھائی سے کم نہیں ہے، آپ کی سخاوت میں، آپ بھی شجاعت میں، آپ بھی اخلاق میں بہت آگے ہیں، آپ اخلاق کے دھنی ہیں، سخاوت میں کم نہیں ہے۔ حضرت امام حسن، ذرا غور کرے، امام حسن اپنے بھائی، چھوٹے بھائی سے بڑے، جب جمعہ کے دن بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن کو غسل کر کے کپڑا پہنا کر کہتی تھی کہ بیٹا جاؤ، جلدی سے مسجد چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جانے میں تاخیر ہو جائے اور تمہارے نانا دوگانا نماز پڑھا دے، یعنی جمعہ کی نماز 2 رکعت میں پڑھا دے، جاؤ جلدی سے نماز میں شریک ہو جاؤ، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن جلدی جلدی آتے اور جماعت میں شامل ہو جاتے، اور کیسے شامل ہوتے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اور صحابہ کرام کو چھلانگ کر کے، صفوں کو چیر کر کے حضور کے پاس جاتے۔ جب حضور کے پاس جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہمارے نواسے دوڑے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیتے۔ جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو امام حسن مسجد نبی میں گئے۔ امام حسن کا بچپنا کا 7 سال آپ کی عمر تھی لگ بھگ،
امام حسن نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر جس تخت پر بیٹھو یہ تخت تمہارا نہیں ہے، جس مسند پر بیٹھے ہو یہ مسند تمہارا نہیں ہے، جس ممبر پر بیٹھے ہو یہ ممبر تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سچ کہا، حق کہا صاحبزادے، یقیناً یہ ممبر، یہ تخت، یہ تاج یہ میرے باپ کے نہیں ہیں نہ میرے ہیں، یقیناً آپ کے نانا کے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق اپنے بازو میں ممبر پر بیٹھاتے امام حسن، بہت پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام امام حسن و حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر 2 سال کے بعد جب حضرت امام حسین بڑے ہو گئے، پھر جب ہو گئے تو ابو بکر صدیق کا زمانہ نہ عمر فاروق کا زمانہ آ گیا۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام حسین گئے، وہی بات کہی جی بڑے بھائی امام حسن نے کہا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عمر، جس ممبر پر بیٹھو یہ ممبر تمہارا نہیں ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کے ہے۔ تو بڑی لاڈو پیار سے عمر فاروق امام حسین کو اپنے بازو میں بیٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ سچ کہا شہزادے، یہ ممبر یقیناً نہ ہمارا ہے نہ ہمارے باپ کا ہے، بلکہ آپ کے نانا جان کا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک دن امام حسین مسجد نبوی میں گئے اور دیکھیں بچپنا ہوتا ہے۔ امام حسین اپنے نانا جان سے ضد کرتے کہ نانا جان ہمیں گھوڑا چاہیے، تو حضور گھوڑا بن جاتے تھے، اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے، ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، اور پھر امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے اور اسی طرح کھلاتے تھے، گھومتے تھے۔ یہی عادت تھی، بچپنا کا زمانہ تھا۔ جب امام حسین مسجد نبی میں گئے تو حضور اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ کہاں تھے؟ سجدے کی حالت میں تھے۔ دوڑے گئے اور وہی گھر والی بات یاد ہے کہ امام حسین سوچے اپنے دل میں کہ نانا جان گھوڑا بنے ہوئے ہیں، آپ کے پشت پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے تو حضور کو خیال آیا کہ میرے پشت پر امام حسین سوار ہو گئے۔ امام حسین جب سوار ہو گئے، دیکھیے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ پڑھنا فرض اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھ، اگر کسی کو زیادہ خلوص آتا ہے، محبت آتا ہے، پیار آتا ہے تو سجدے میں 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں حضور ہیں اور نواسائے رسول پشت پر سوار ہے، گویا کہ یہ پتا چل رہا ہے مہر نبوت اپنے پشت پر ولایت کو مجھ کو اٹھائے ہوئے۔ بولے سبحان اللہ۔ دیر ہو گئی، سجدے میں رہے، دیر ہو گئی، حضور تسبیح پڑھتے جا رہے، دیر ہو گئی تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے گمان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور رب سے ملنے چلے گئے، یعنی روح پرواز کر گئے۔ صحابہ نے سوچا، ہم نے گمان کیا۔ جو آگے صحابہ تھے انہوں نے تھوڑا سر اٹھایا، دیکھے تو مسکرائے، امام حسین حضور کے پشت پر سوار ہوئے، پھر سر نیچے کر دیے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہنوں سے مارا، دیکھو امام حسین آئے ہیں اور پشت پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، پھر اسی طریقے پورے صحابہ سر اٹھاتے رہے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حضور نے 72 تسبیح پڑھ لی۔ اب ذرا یہاں پر توجہ سے سنیں، جب پشت پر امام حسین نبی کے سوار ہو گئے تو اس وقت سجدے میں حضور کے دل میں کس کا خیال آ گیا؟ اللہ کا یا حسین کا؟ بولیے نا، کس کا خیال آ گیا؟ امام حسین۔ امام حسین کا خیال تھا نا، حضور نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضور نے یہ سوچا کہ جب تک امام حسین ہمارے پشت پر اتر نہ جائیں گے تب تک ہم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ اور صحابہ نے بھی اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا، کس کو دیکھا؟ امام حسین کو دیکھا۔ تو نماز میں کس کی خیال آئی؟ امام حسین کا۔ لیکن ایک جو ہے بدبخت مر گیا، صراط مستقیم میں لکھتا ہے مر گیا مردود فاتحہ نہ دو۔ کیا لکھتا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ گیا، معاذ اللہ، آپ لوگ بھی بولے معاذ اللہ، کیا کہتا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ گیا نماز نہیں ہوگی۔ اس سے
उससे बेहतर है। क्या लिखता है सिरात मुस्तकीम में बदबख्त लिखता है कि उससे बेहतर है कि नमाज में गधा और बैल का ख्याल किया जाए। ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस बदबख्त से हम कहना चाहते हैं कि तुमको नमाज में गधा बैल का ख्याल आना मुबारक हो और हमको नमाज में इमाम हुसैन का ख्याल आना मुबारक हो। हमको नमाज में हुजूर का ख्याल आना ही मुबारक हो। क्योंकि जब हम नमाज की हालत में जब हम दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हुजूर का भी ख्याल आता है और हुजूर की औलादों का भी ख्याल आता है। यहाँ तक जब नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं इब्राहिम का भी ख्याल आता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों का भी ख्याल आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए कि शायर कहता है पढ़ो नमाज और रोजा जिसमें नबी का नाम ना हो। पढ़ो नमाज और रोजा जिसमें नबी का नाम ना हो। बताओ ये सजदा हराम है कि नहीं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन की ये शान है, ये अजमत है, ये मकाम है। आप देखें इमाम हुसैन उस वक्त अपने नाना जान के पुष्ट पर से उतरे जब नाना जान ने 72 की तस्बीह पूरा कर दिया। गोया कि इमाम हुसैन को भी पता था कि नाना जान ने 72 तस्बीह पढ़ ली, उतर गए। अब गोया के ज़बान हाल से इमाम हुसैन यही कह रहे थे कि नाना जान आपने अपने नवासे के लिए अपने सजदे को लंबा कर दिया और आपने सजदे में 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। तो नाना जान ये आपका हुसैन जब आपके दीन को बचाने के लिए, आपके मजहब को बचाने के लिए, कुरान और हदीस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब करबला में जाएगा अकेला नहीं बल्कि अपने साथ में 72 साथियों को लेकर जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाज़ लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाज़ लोग इमाम हुसैन को मोहताज समझते थे। करबला में इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला, इमाम हुसैन प्यासा शहीद हो गए, इमाम हुसैन भूखा शहीद हो गए, इमाम हुसैन के साथ ये जुल्म किया गया। याद रखना, अब आपसे आगे मैं बताऊंगा, फिर इसके तवस्सुल से मैं बताऊंगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उम्र फारूक का दौर आया, उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। गोया कि तमाम सहाबा कराम ही आले नबी से मोहब्बत करते थे। जब जंग होती थी, जिस जंग में माले गनीमत आता था और जब सारे सहाबा को, सारे फौजियों को तकसीम किया जाता था तो सबको एक एक हिस्सा मिलता था। इमाम हसन हुसैन को 2-2 हिस्सा मिलता था। बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक जंग से तमाम सहाबा करम लौट कर आए, मस्जिद नबवी में सारा माले गनीमत को रख दिया गया है और उमर फारूक अपने हाथों से तमाम मुसलमानों को, तमाम फौजियों को माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया उसी सफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो भी मौजूद थे, वो जो उमर फारूक के बेटे थे। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को एक हिस्सा दिया, उसके बाद नंबर आ गया इमाम हसन का, इमाम हसन को 2 हिस्सा दिया। अब्दुल्ला ने सोचा अरे जिस वक्त मैं जंग में जाता था उस वक्त इमाम हसन छोटे थे, मैं उस वक्त से जंग कर रहा हूँ, ये कैसी नाइंसाफी है। मुझे एक हिस्सा दिया गया, इनको 2 हिस्सा दिया गया। खड़े रहे, बगल में अली भी है, बोले सुभान अल्लाह। बगल में अली भी है। फिर इमाम हुसैन का नंबर आया, सॉरी वहां पर अली नहीं थे। जब इमाम हुसैन की बारी आई तो उमर ने फिर इमाम हुसैन को 2 हिस्सा दिया। जो हिस्सा दे दिया गया तो अब्दुल्ला को रहा नहीं गया। अब्दुल्ला ने कहा है आपको ये कैसी नाइंसाफी है, अमीरुल मोमिनीन मदीना शरीफ के खलीफा, अब कैसे खलीफा है, अपने बेटे को एक हिस्सा दे रहे हैं और इमाम हसन हुसैन को 2 हिस्सा दे रहे हैं, सबको आपने एक हिस्सा दिया और इनको 2 हिस्सा दिया, आपने ऐसा क्यों किया। उमर का प्यारा जवाब सुनिए। उमर फरमाते मेरे बेटे, सबको मैंने जो एक हिस्सा दिया वो एक हिस्से के लायक है, जो मैंने आले नबी को 2 हिस्सा दिया ये 2 हिस्सा के लायक है। बोले सुभान अल्लाह। आज के बाद तुमने ऐसी बात कही तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बड़ी आपने अपने बेटे को डांटा। जब सहाबा कराम ने इस बात को सुना तो अली के पास गए
अली से फरमाने लगे कि ए अली, आज हम लोगों ने गजब देखा है। अली ने फरमाया क्या देखा है? सहाबा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब के नवासे का हम जिक्र कर रहे दस्ताना करबला सुन कर बहुत हम खुश नसीब हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अली से जाकर सहाबा ने फरमाया, ए अली, आज गजब हो गया मस्जिद नबी के सामने। अली ने फरमाया क्या हो गया? सहाबा ने फरमाया कि आज उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बड़ी डांट लगाई, बहुत गुस्सा का इजहार किए। अली ने फरमाया किस बात पर? सहाबा ने फरमाया बात ये थी कि उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को और तमाम लोगों को जो जंग में शरीक थे सबको गन्नारे गनीमत का एक एक हिस्सा देते थे, लेकिन इमाम हसन हुसैन को दो दो हिस्सा दिए। उस पर अब्दुल्ला ने एतराज किया। इसी बात पर उमर ने अपने बेटे को डांट लगाई तो अली मुस्कुराए और अली ने फरमाया ठीक कहा हुजूर ने कि उमर जन्नतियों का चिराग है। वो सुभान अल्लाह, ठीक कहा हुजूर ने कि उमर जन्नतियों का चिराग है। जब उमर को ये बात पता चली तो उमर खुद मौलानी शेर खुदा के घर पर गए। अली ने फरमाया उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कैसे आना हुआ? अगर आप ही कहते तो मैं आ जाता। उमर ने फरमाया कि आज मेरी बात है, मेरा काम है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अली ने फरमाया कि बेटे क्या काम है? उमर ने फरमाया कि जो आपने कहा है कि उमर जन्नतियों का चिराग है, क्या आप ही ने कहा है? अली ने फरमाया कि बेशक मैंने कहा है। उमर फरमाते हैं कि एक सनद लिखकर हमें दे दे। अली ने फरमाया ठीक है मैं लिख देता हूँ। अली ने लिखा कि मैंने सुना, अली का लिखते सनद कि मैंने सुना कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर से जिब्रील अमीन ने फरमाया और जिब्रील से रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उमर जन्नतियों का चिराग है। एक सनद लिखकर उमर के हाथ में दे दिया गया। उमर ने उस सनद को आंखों से लगा, बोसा दिया, अपने घर आए और अब्दुल्ला को बैठाते हैं और फरमाते हैं अब्दुल्ला देखा, मैंने जब इमाम हसन हुसैन की आजमत किया, आपकी ताज़ीम की, आपके खानदान का इज्जत किया, एहतराम किया, देखा इसके एवज में मुझे कितना बड़ा इनाम मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नतियों का चिराग अता फरमाया। ऐसा लक़ब दिया है, ए अब्दुल्ला, जब तक तुम दुनिया में रहना, आले नबी से मोहब्बत करते रहना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोनों जहां की बरकत अता फरमाएगा। और अपने बेटे को वसीयत की, ए अब्दुल्ला, जब मैं इंतकाल हो जाऊं मेरे कफन में ये सनद रख देना। जब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा ए उमर तुमने क्या लाया है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में ये सनद दिखा दूंगा कि मौला, मैं मौला अली शेर खुदा का सनद लेकर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सनद की बरकत से मुझे बख्श देगा। अज़ान मिलत इस्लामिया, ये इमाम हसन हुसैन की शान है। अज़ान मिलत इस्लामिया हुजूर के ज़माने, हज़रत की दो चार वाक़या मैं बयान करूँगा। हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यमन फतह हुआ। उस जंग में हातिम ताई का बेटा जिसका नाम है हातिम बिन अदी और उसकी बहन अदी बिन हातिम ताई की बहन और उसके कबीले वाले गिरफ्तार हो गए। हातिम ताई का आपने नाम सुना है ना? वो फिल्म वाला हातिम ताई नहीं जो एक लड़के से इश्क किया, परी से इश्क किया, देव से इश्क किया, इस तरीके से, ऐसा नहीं, वो इश्क करने वाला नहीं था। हातिम ताई बड़ी सखी इंसान था। हुजूर से चंद साल पहले वो इंतकाल हो गया। हुजूर का ज़माना उसे नहीं पाया। यमन का रहने वाला था, बहुत ही नेक दिल इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था कि जो भी हातिम ताई के दरबार में जाता था हातिम ताई उसको बेगर दिए लौटाता नहीं था। हुजूर ने फरमाया अगर हातिम ताई मेरे ज़माने में होता तो यकीनन मुझ पर ईमान ले आता और दुनिया देखती कि मैं हातिम ताई से भी ज़्यादा देने वाला निकलता। हातिम ताई के बेटे और उसकी बेटी और उसके लोग गिरफ्तार हो रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि इसमें है कोई हातिम ताई का कबीला वाला? तो अदी ने कहा कि जी हुजूर मैं हूँ और मेरे
जी मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया हातिम ताई की कोई औलाद है? तो अदी ने कहा कि जो हुजूर मैं हूँ। खैर हुजूर ने फरमाया कि हातिम ताई सखी इंसान था, नेक इंसान था, इसलिए उसकी सखावत की बिना पर सारे कबीले को मैं आज़ाद कर देता हूँ। फिर हातिम ताई का बेटा और उसकी बेटी ने हुजूर पर ईमान लाया। अब जरा गौर करें, हातिम ताई के पास एक शख्स गया आजमाने के लिए कि देखिए हातिम ताई वाकई में सखी इंसान है कि नहीं। जब उसके पास गया तो हातिम ताई सखावत का धनी इंसान था, बड़ी लोगों के मेहमान नवाजी करता था। शाम का समय था, वो शख्स बोला हातिम ताई से कि हातिम ताई हुजूर मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। हातिम ताई कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि मैं रोजाना एक एक मेहमान को पकड़ कर लाता हूँ, अपने घर पर खाना खिलाता हूँ। अब तो खुशी की बात है कि मेरे घर पर खुद ब खुद मेहमान आ गया। हातिम ताई उस मेहमान को अपने शाही मेहमान खाना में बैठाया और उसके लिए अपने बावर्ची से कहा कि अच्छा से सब पकवान बनाओ, गोश्त का कीमा बनाओ, कबाब बनाओ, टिकिया बनाओ, एक ही गोश्त को कई किस्म का खाना बनाओ, लजीज से लजीज खाना बनाओ। लजीज से लजीज खाना बनकर जब खाने का वक्त हुआ दस्तरखान पर रख दिया गया। हातिम ताई भी साथ में बैठे हुए, वो मेहमान भी साथ में बैठा हुआ है। वो खाना खाते जा रहा है, हातिम ताई की तारीफ करते जा रहा है। बहुत खुश हुआ, दिल उसका खुश हुआ खाना खाकर। रात में सोया, जब सुबह हुई उसने कहा कि मैं हातिम ताई को आजमाता हूँ, वाकई में सखी इंसान है कि नहीं। क्योंकि हातिम ताई के पास एक सफेद घोड़ा था। क्या था? सफेद घोड़ा। जब वो घोड़ा पैदा हुआ उस वक्त हातिम ताई पैदा हुआ। जैसे जैसे घोड़ा बढ़ता रहा हातिम ताई भी बढ़ता रहा। यानी घोड़े की उम्र और हातिम ताई की उम्र एक ही थी। बहुत प्यारा घोड़ा था, हातिम ताई बहुत उससे मोहब्बत करता था, बड़ी चहीता घोड़ा था। उस मेहमान ने कहा कि हुजूर मैंने सुना है कि आपकी सखावत दूर दूर तक फैली हुई है और जो भी आपसे जो शख्स जो मांगता है आप उसे दे देते हो। मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे? हातिम ताई ने कहा क्यों नहीं दूंगा, अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा। उस मेहमान ने कहा कि आप नहीं देंगे। हातिम ताई ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मेरे पास वो सामान होगा तो मैं दे दूंगा। उस शख्स ने कहा कि जो आपका चहीता घोड़ा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वही घोड़ा मुझे दे दीजिए, जो सफेद रंग का घोड़ा है। हातिम ताई ने जब ये बात सुनी अपने सर पर पकड़ लिया, हाय अफसोस। उसने क्या हुआ? मैंने कहा था कि आप नहीं देंगे, क्योंकि आप उस घोड़े से मोहब्बत है, प्यार है, वो घोड़ा आप हरगिज़ किसी को नहीं दे सकते। हातिम ताई ने कहा वो मेहमान तुमने गलत समझा, अगर वो घोड़ा मेरे पास होता तो मैं दे देता, लेकिन वो घोड़ा है नहीं। मेहमान ने कहा क्या हुआ? आपने फरमाया हातिम ताई ने कि जब तुम हमारे घर आए मेहमान बन करके, रात के समय आए थे, शाम के वक्त था, जितने मेरे जानवर हैं सब चरने के लिए गए हुए, कोई घर पर जानवर नहीं था। तो मैंने सोचा घर पर मेहमान आया, इसका मेहमान नवाजी की जाए, बढ़िया से खातिर नवाजी किया जाए, लजीज से लजीज खाना खिलाया जाए। तो जो मेरा चहीता घोड़ा था, सफेद रंग का प्यारा घोड़ा था, मैंने उसी घोड़े को जबह करके तुम्हें खिला दिया। उस जमाने में जो घोड़ा खाते थे बाद में मना हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, हातिम ताई ने अपने चहीते घोड़े को जबह करके मेहमान को खिला दिया। अब जरा गौर करें, नवासे रसूल के अंदर वो आदत पाई जाती है कि नहीं? हुजूर ने क्या फरमाया, अगर मेरे जमाने में हातिम ताई होता तो मेरे ऊपर जरूर ईमान ले आता और जरूर लोग जो है मुझे हातिम ताई से बढ़कर सखावत करने वाले पाए। ये जुमला को याद रखेंगे। बस इसी बात की आपको बयान करूंगा, फिर सलातो सलाम पढ़ा जाएगा और फिर जो है खत्मे खादरान पढ़ेंगे मुख्तसर में, क्योंकि आज 36 शरीफ गरीब जमात की निस्बत से अज़ान मिलत इस्लामिया। एक मदीना शरीफ में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसका कोई सहारा नहीं था। उसकी एक माँ, बूढ़ी माँ थी और बीमार पड़ गई, उसके पास पैसा भी नहीं था। दौड़े दौड़े एक तबीब के पास गया, एक हकीम के पास गया। वो हकीम यहूदी था। उस बच्चे ने कहा हकीम साहब मेरी माँ बीमार हो चुकी है और माँ के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। वो बच्चा मुसलमान था, कोई सहारा नहीं है, मैं माँ के बगैर जी नहीं सकता, आप मेरी माँ को इलाज करें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, फ्री में इलाज करें और बाद में पैसा होगा तो मैं कमा कर आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है।
कहा कि चलो मैं देखता हूँ। उसको दिल में थोड़ा रहम आ गया उस डॉक्टर को। उसने कहा चलो देखते हैं। आया, उसने नब्ज को देखा, सीने को देखा, जो भी था वो उसने चेक किया। उसने कहा बेटे तुम्हारी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो और इस बीमारी को दूर करने के लिए सफेद घोड़े का जिगर चाहिए। क्या सवाल किया? सफेद घोड़े का जिगर चाहिए। अब तुम्हारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो दवाई कहाँ से ले पाओगे? फिर घोड़ा कहाँ से खरीदोगे? अगर सफेद रंग का घोड़ा का जिगर मिल जाएगा तो माँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको मैं सुखाकर कूट काट कर एक ऐसी दवा बनाऊंगा जिस दवा के जरिए तुम्हारी माँ सेहतमंद हो जाएगी। बच्चा रोने लगा। उसने कहा कि हकीम साहब वो घोड़ा कहाँ मिलेगा? यहूदी ने कहा कि मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। तुम्हारे नबी के नवासे इमाम हुसैन के पास वो घोड़ा है, जाओ, वो सखी है, वो दे देंगे। वो दौड़ा दौड़ा बच्चा आया, बोला कि हुजूर हमारी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि सफेद रंग के घोड़े का जिगर चाहिए, तो आप हमें दे दें। इमाम हुसैन ने बेगर ताकुब के, बेगर कुछ सोचे, आपने अपने खादिम से कहा कि जाओ अस्तबल से सफेद रंग का घोड़ा लाओ, इसके हवाले कर दो। लेकिन एक काम करो कि ये बच्चा छोटा है, जबह नहीं कर पाए, तुम खुद अपने हाथों से जबह करो, जिगर निकाल कर इसके हवाले कर दो। बोले सुभान अल्लाह। खादिम आया, अस्तबल में गया, घोड़ा लाया, जबह किया, उसका जिगर निकाल कर बच्चे को दे दिया। जब बच्चा लेकर गया घर तो तबीब ने कहा वो अफसोस, मुझसे गलत फहमी हुआ। सफेद रंग का घोड़े का जिगर नहीं चाहिए था, जरा मैं टेंशन में था, डिप्रेशन में था और दिमाग काम नहीं किया, मैं गलती से कह दिया सफेद रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। दवा के लिए असल जरूरत यह है कि काले रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि साहब पहले आपको सोच कर कहना चाहिए था, मैं इमाम से कैसे कैसे घोड़ा लेकर आया, आप इमाम इतने सही हैं कि बेगर सोचे समझे अपना घोड़ा को जगह करवाकर जिगर दे दिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? उस यहूदी ने कहा कि जाओ इमाम ही के पास सब काले रंग का घोड़ा है। फिर आया, बोला कि हुजूर तबीब से थोड़ा गलत फहमी हो गई और थोड़ा वो तजब्जुब का शिकार है, ज़्यादा सोचता है, तो उसने कहा कि गलती से हमने सफ़ेद रंग का घोड़ा कह दिया, उसको सफ़ेद रंग के नहीं बल्कि काले रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। इमाम हुसैन ने कुछ नहीं सोचा, बल्कि आपने कहा वो खादिम जाओ अस्तबल से काले रंग का घोड़ा लाओ और उसको हाथों से जबा करो, जिगर निकाल कर दे। जरा गौर से तवज्जो सुनिएगा। जैसे वो बच्चा जिगर लेकर गया घर पर, तबीब ने कहा अफसोस, बहुत गलती हो गई हमसे, काले रंग के घोड़े का जिगर नहीं चाहिए था। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, डिप्रेशन, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने गलती से काले रंग का घोड़ा कह दिया। असल में तो काले रंग का घोड़े का जिगर नहीं चाहिए, सुर्ख रंग यानी लाल रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। उस बच्चे ने कहा तो हकीम तुम डॉक्टर के पागल क्या बकवास करते हो, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं लाने के लिए, क्योंकि तुमने 2 मरतबा 2 घोड़े को जाय करवा दिया। फालतू में सफेद घोड़ा भी जमा हो गया, काला घोड़ा भी जमा हो गया। अब बताओ ये घोड़ा कहाँ मिलेगा सुर्ख रंग का? उस तबीब ने कहा कि सुर्ख का रंग का भी घोड़ा इमाम के पास मिलेगा, जाओ। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा? एक काम करो, तुम चले जाओ अपने घर पर, माँ मरे चाहे जिंदा रहे, हमें मतलब नहीं, क्योंकि मैं 2 मरतबा इमाम से 2 घोड़ा ला चुका हूँ जमा करवा करके जिगर, अब नहीं जाऊंगा। हकीम ने उसको समझाया और कहा कि देखो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के अलावा कोई भी मर्तबा वाला नहीं है। अगर माँ खुश है तो समझो को दुनिया आखिरत कामयाब। उस यहूदी समझा रहा है उस बच्चे को, थोड़ा बच्चे का दिल पिघल गया। उसने कहा चलो ठीक है जाते हैं। अब धीरे धीरे जा रहा है, जाऊंगा तो इमाम क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, एक ही मरतबा तुम्हें सोच कर आना चाहिए, हकीम से पूछ कर आना चाहिए। जब गया धीरे धीरे जा रहा तो इमाम ने दूरी से देखा, इमाम ने फरमाया बच्चे वो साहबजादे क्या अभी भी तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ? बच्चे ने कहा कि इमाम क्या करें, डॉक्टर अजीब किस्म का है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। उसने आपकी बार कहा कि सुर्ख रंग का घोड़े का जिगर चाहिए। इमाम ने क्या किया, अपने खादिम से कहा कि जाओ सुर्ख रंग का घोड़ा लाओ और उसे जबा करो, जिगर निकाल कर दो। और सुर्ख रंग का घोड़ा का जिगर लेकर जब गया तो तबीब ने कहा वो बड़ी अफसोस की बात है, ये भी जिगर कामयाब नहीं होंगे,
क्योंकि मैं टेंशन में डिप्रेशन और मैं किताबों में देखा हूँ, किताबों में हकीकत में जो तुम्हारी माँ का इलाज है चितकबरे घोड़े का जिगर चाहिए। उसने कहा कहाँ मिलेगा? बोले वही इमाम के पास मिलेगा। बोले देखो अब हमें इलाज नहीं कराना है इमाम, 3 घोड़े तुमने जमा करवा दिया फालतू में, इमाम इतने सखी है तुमने कुछ नहीं बोला, घोड़ा दे देते हैं। उसने कहा कि जाओ, बड़ी समझा, फिर वो बच्चा अब धीरे धीरे आ रहा है। इमाम ने दूरी से देखा, आपने बोला है बच्चे को, बोले देखो घबराओ नहीं, परेशान ना, क्या अभी भी तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ? तो उसने कहा कि माँ अजीब किस्म का हकीम है, तबीब है, अब बोल रहा है कि चितकबरा घोड़ा का जिगर चाहिए। इमाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ इस्तबल से घोड़ा लाओ, जमा करो, जिगर निकाल कर लेकर। फिर वो जिगर लेकर बच्चा गया। वो हकीम बोला कि देखो अब तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाना, अब मुझे इलाज कराना। बोले सुभान अल्लाह, मैं खुद बीमार हूँ। बच्चा ने कि क्या हुआ? पहले तो मेरी माँ का इलाज करने के लिए आए थे, अब खुद तुम बीमार हो गए? बोले कि हाँ मैं बीमार काफी दिनों से हूँ, अब मुझे तुम ले चलो अपने इमाम के पास, उनकी बरगाह में जाकर मैं अपने बीमारी का इलाज कराना चाहता हूँ। तो बच्चा ने कहा कि मेरी माँ का क्या होगा? उसने कहा तेरी माँ का कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अब हकीम और वो बच्चा इमाम के पास जा रहे थे, इमाम खुद ही चल कर आ रहे थे। बोले सुभान अल्लाह कि देखे उस बच्चे का माँ का इलाज हुआ कि नहीं हुआ। जब इमाम से मुलाकात रास्ते में हो गई तो इमाम ने फरमाया हकीम से, क्या इसकी माँ का इलाज हो गया, ठीक हो गई? जिगर और चाहिए और कुछ भी चाहिए तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। हकीम ने कहा इमाम इसकी माँ ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इमाम ने बोला क्यों 4 घोड़े तुमने जमा करवा दिया? मेरे पास 4 ही घोड़े थे, बड़ी कीमती घोड़े थे। उस यहूदी ने कहा कि हमने सुना है कि आपके नाना ने फरमाया है अगर मेरे जमाने में हातिम होता, मेरे ऊपर ईमान ले आता और दुनिया देखती कि मैं हातिम ताई से भी बढ़कर सखावत करने वाला निकलता। मैं यही आजमा रहा था कि जो हुजूर ने फरमाया है वो बात उनके नमाजों में पाई जाती है कि नहीं। बोले सुभान अल्लाह, मैंने वो बातें पाली। आपने 4 घोड़े को जो है बेकर तरक्की पे बेकर सोचे जो है आप खिदमत खल्क के लिए, लोगों की मदद के लिए आपने जमा करवा कर जीवन को दे दिया। वो हाथ बढ़ाया, इमाम हुसैन के हाथ पर रखा, इमाम हुसैन से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहूदी मुसलमान हो गया। फिर इमाम ने फरमाया कि जो तुम अपने दिल में सोच रहे हो वो भी पूरा कर दूं। तुम यही ना सोच रहे हो अगर इमाम हक पर है तो जो घोड़े जमा हो चुके हैं वो भी जिंदा हो जाए। इमाम ने अपनी उंगली का इशारा किया और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, जो 4 घोड़े जमा हो गए थे अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम भी इमाम से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इश्क करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम हुसैन के सदके में हमारी परेशानियों को, हमारी मुश्किलों को, हमारी बलाओं को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया यही सोच रहे थे कि इमाम हुसैन करबला में मोहताज है। पानी का याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन के औलादों की औलाद सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं और जब आपके ऊपर जुल्म किया गया, सितम किया गया, परेशान किया गया, पानी बंद कर दिया गया, तो गरीब नवाज ने अपने खादिम से फरमाया जाओ आना सागर से कहना तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। बोले सुभान अल्लाह। तो आना सागर का पूरा पानी एक काशा में आ गया। अगर इमाम हुसैन हुकुम फरमा देते करबला में तो आना वहां पर जो है नहरे फुरात किया, समुंदर का पानी दौड़कर इमाम हुसैन के कदमों में आकर गिर जाता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हुसैन जो कहते हैं ना हाय सकीना हाय माँ, इस तरीके से करते हैं, अफसोस करते हैं। अफसोस की बात नहीं है, हमारे हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया है, बहादुरी की बात है। हमारे हुसैन ने कुरान की हिफाजत की है, ये जो बहादुरी की बात है। हमारे हुसैन ने हदीस की मुहाफिजत की, ये जो गुरूर की बात है। हमारे हुसैन ने जो है परचम इस्लाम के झंडे को ऊंचा कर दिया है, बहादुरी की बात है, कोई अफसोस की बात नहीं है। अफसोस उस बात की होती है जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हो जाते, इस्लाम में चला
कुरान कोई पढ़ने वाला ना होता, इमाम हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, आज भी हर घर में इमाम हुसैन के चाहने वाले लोग नजर आ रहे हैं। आज भी अली का नारा लगाने वाले लोग हैं। अली को फातिह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को शाह मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन। बसार मिलत इस्लामिया, बस आज की वाक़ियात मैं ख़त्म कर दूँ। कल से इंशाअल्लाह हम जो है मदीना से मक्का और मक्का से कुफा की बात करेंगे। तो आप देखें, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुल्क शाम की बादशाह पर मुख्तसर में मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद आज का वाक़या ख़त्म हो जाए। तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 23 साल हुकूमत की, बड़ी पुरअमन माहौल रहा, कोई लड़ाई आपस में झगड़ा नहीं रहा, क्योंकि उस ज़माने में अब कोई टेंशन कोई परेशान नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा बस ये अख्तलाफ सब खत्म हो चुके थे। और अमीर माविया के ज़माने में यहूदियों से जब हुई, ईसाइयों से जब हुई, कई मुल्कों को फतह किया गया। और देखें, अमीर माविया के ज़माने में जो मदीना का गवर्नर था उसका नाम था मुगीरा बिन शेबा। इन नामों को याद रखें, मुगीरा बिन शेबा। ये सहाबी रसूल थे लेकिन बड़ी चालाक थे, होशियार थे। तो इनकी सुस्ती के बुनियाद पर, यानी सिस्टम को अच्छा तरीके से नहीं देखते थे, बड़ी सुस्ती काहिली करते थे। तो सहाबा कराम ने लोगों ने अमीर माविया का शिकायत किया, कई मरतबा खत भेजे, तो अमीर माविया ने मुतालबा किया तो उनको हाजिर किया जाए दरबार में, लेकिन वो नहीं गए। कई खुतूत आए फिर भी नहीं गए। 20 दिन के बाद पहुंचे। अमीर माविया ने कहा कि हमारा कोई कदर नहीं, कोई एहतराम नहीं, जब मैंने तुमको हुक्म दिया तुमको आ जाना चाहिए था, तुम नहीं आए, 20 दिन के बाद आ रहे। तो मुगीरा बिन शेबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आप ही का काम कर रहा था, मैं दारुल खुलफा में नहीं था, मैं मदीने के गलियों में घूम रहा था। अमीर मामी ने कहा कि क्या कर रहे थे घूमकर? उसने कहा कि मैं लोगों के जहन बना रहा था कि आपके बाद खलीफा कौन बनेगा, आपके बाद बादशाह कौन बनेगा। तो मैं लोगों को यही कह रहा था कि आपके बाद जो खलीफा बनेगा आपका बेटा यजीद बनेगा। मैं यही जहन बना रहा था, मैं तो आप ही का काम कर रहा था। बहुत खुश हुए, इनाम और इकराम देकर उसे भेज दिया। अब उनके जहन में यही आ गया मेरे माविया। देखिए, जहाँ तक दिफा की बात है, हम मेरे माविया सहाबी रसूल की दिफा करते हैं, लेकिन कुछ उनसे मिस्टेक हुआ है, खता इज्तिहादी हुआ है, उसको मानते हैं। लेकिन सहाबी इसलिए मानते हैं, वो बुरा भला नहीं कहते कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबी का एक मुट्ठी जौ सदका करना और दूसरे लोगों को एक पहाड़ सोने का सदका करना उतना बड़ा मुकाबला है। क्योंकि एक अदना सहाबी के मुकाबले में न गौस पहुंच सकता है, न कुतुब पहुंच सकता है, न अब्दाल पहुंच सकता है, क्योंकि सहाबी सहाबी होता है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम अमीर माविया से मोहब्बत करते, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जो खता इज्तिहादी के तौर पर। तो अमीर माविया के जहन में ही आ गया कि मेरा बेटा यजीद खलीफा बनना चाहिए। तो आप जो है मदीना शरीफ आए और मस्जिद नबी में एक मीटिंग रखी, लोगों को बुलाया और आपने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद जो खलीफा बनेगा मेरा बेटा यजीद बनेगा। देखिए, वाक़ियत करबला बताने का मकसद यही है कि लोग इंतशार से, इख्तलाफ से, बगावत से, बुग़्ज़-ओ-किना से महफूज रहे, और जहाँ तक अपने ईमान महफूज करने की बात है वहाँ तक महफूज करे, किसी को बुरा भला ना कहे, इसलिए बताया जाता है। अब जरा तवज्जो से सुनिए। तो अमीर माविया ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा बनेगा। उस पर अबू बकर सिद्दीक के बेटे खड़े हुए। उन्होंने कहा, उनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने फरमाया कि अमीर माविया आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपके बाद आपका बेटा खलीफा नहीं बनेगा, क्योंकि जो खलीफे का हकदार होगा वही होगा। आप बादशाही सल्तनत कायम करना चाहते हैं कि बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, उसका बेटा बादशाह बनेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो अमीर मावी ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने बाद उमर को खलीफा बनाया। अब अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, आपने फरमाया कि आप गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। आपने अबू बकर सिद्दीक ने उमर को खलीफा बनाया तो उमर आपके खानदान के नहीं थे, आपके घर वाले नहीं थे,
इस तरीके से माहौल खराब हो गया। उस वक्त इमाम हुसैन का कुछ खलीफा से हुकूमत से कुछ लेना देना था। आप जो है गोशा नसीब थे, अल्लाह की बात करते, कोई मतलब नहीं था। अजान मिलत इस्लामिया फिर जब वो चले गए कुछ बात बनी नहीं, लेकिन माहौल यहाँ का इंतशार हो गया, माहौल बिगड़ गया, इस तरीके से हो गया। जब आपस में बातें होने लगी, उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद अमीर माविया को जो है खारिज मार दिया। अब बीमार हो गए और उसी हालत में आप इंतकाल फरमा गए। लेकिन आपका बेटा जो है यजीद बैठ गया तख्त पर। तो जब यजीद तख्त पर बैठा तो इंतकाल होने से पहले अमीर माविया ने अपने बेटे से फरमा था कि बेटा इमाम हुसैन की कदर करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे बगावत कभी नहीं करना, और जो भी काम करना उनसे मशवरा लेकर करना। एक बात याद रखना, तुमको जो खतरा है ना अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हैं बहुत चालाक हैं, लोमड़ी की तरह और चीता की तरह तेज हैं, दुश्मनों को दबोचना जानते हैं। और तुम्हें अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो सूफी है और मस्जिद में रहते हैं, बात करते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और मस्जिद ही उन्होंने अपने घर ही को मस्जिद बना लिया है, सूफी आदमी। इस तरीके से उन्होंने कुछ अपने बेटों को समझाया। आप देखें जब यजीद बन गया खलीफा, बादशाह बन गया, तो उसने अपने चारों तरफ उनके शाम में बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की बात कही। आप देखें वलीद बिन उक़बा जो मदीने के गवर्नर हो गए उसके ज़माने में, यजीद के ज़माने में, और मरवान बिन हकम, सब नामों के ये मरवान जो था बहुत बदबख्त इंसान है, ये लोगों को उसका आता था लड़ाई झगड़ा पड़ा। वलीद बिन उक़बा जो है इमाम हुसैन को अपने दारुल खिलाफा में बुलाए और कहा कि यजीद का हुक्म है, खत आया है कि आप यजीद की बैत को कबूल कर लें। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बैत इस तरीके से नहीं ली जाएगी, मस्जिद नबी में एक मीटिंग, एक मशवरा किया जाए, सारे लोगों को बुलाया जाए और उसी दरमियान जो है ये सारा सिस्टम तय पाएगा। उसके बाद आप जाने लगे। तो मरवान बिन हकम ने कहा वलीद बिन उक़बा से कि इनको पकड़ो, कत्ल कर दो, अगर ये बाहर निकल गए तो यजीद की बैत भी नहीं करेंगे और इतना बड़ा लश्कर तैयार कर लेंगे कि तुम उनको संभाल नहीं पाओगे। इस तरीके से उसने उर्वला दिया, बहका दिया। खैर इमाम हुसैन अपने घर पर आए, घर आने के बाद अपने घर वालों से फरमाया कि देखो अब हमें मदीना में रहना सही नहीं, क्योंकि माहौल हालात ख़राब हो चुके हैं, फिर हम जो है यहाँ से कुछ करेंगे मक्का की अज़ान मिलत इस्लामिया, फिर इंशाअल्लाह यहाँ से कल हम बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोग को सच कहने की तौफीक